Dear student friends, I am Dr. Godbole Mahendra Tukaram, welcoming you all on our YouTube channel. So in today's presentation, I am going to expressing some of the most important current affairs, especially for those students, those who are going to preparing for the national level examination, that is NDA examination for armed forces, and for them we are going to launching this today's presentation. So according to the schedule of the UPSC, that NDA's examinations will be held on the 13th September of 2026, and in today's presentation we are going to highlighting some most important current affairs of 3 months, right from the January 1st to, to March 2026. What happens in these 3 months, that I am going to explaining. So in this presentation I have been selected most important national as well as international, especially the international events, and those events are only dedicated for the defense development. What happens, what is going to happening in the defense, that I am going to highlighting. So apart from the NDA examinations, this my today's presentation will also be fruitful for the students, those who are going to preparing for the other civil examinations. Maybe the civils examinations, the different sector is going to conducting the examination for to enroll the officers for the banks and other examinations, especially for the railway group D, and other examinations are also going to asking certain kinds of the questions. Coming to the point of the current events of the January 2026, here I am going to highlighting the brief information about those contents. Let us see, there are 4 different important development was took place in 2026 first month of the January. So the army, the first news or the first event is supposed to be the army imparts the self-defense trainings to the villagers of the Jammu's Doda to fight the terror. So what happens is, earlier the terrorists were giving the deterrence, and they were the spreading too much fear in the minds of the villagers. But what happens, due to the initiative of the Indian armed forces, they were started to impart the self defense. The importance, the impart, actually the meaning of the impart is to give the knowledge or the training. दो प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं. Some of the trainings are supposed to be the classroom based training, and some trainings are supposed to be how to participate in a combat, स्पेशली द माउंटेन कॉम्बैट. जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट और द साउथ वेस्टर्न रीजन जो है, स्पेशली इट इज हाईली एलिवेटेड रीजन बाय द प्रेजेंस ऑफ द हिमालय, और वो जो चोटियां हैं वहां से जो मतलब इनफिल्ट्रेशन होता है पाक ऑक्यूपाइड रीजन से, या हमारे जो एनिमी नेशंस है उनकी जो बाउंड्रीज है, उनकी जो टेरिटोरीज है, वहां से जो टेररिज्म्स इंपोर्टेड हो जाता है, तो उसका हमारे दैट विलेजर्स को काफी मात्रा में खतरा होता है. तो उनके लिए जो तो इंडियन आर्मी ने एक इम्पार्ट किया, एक सेल्फ डिफेंस के लिए एक ट्रेनिंग दे दी है. स्पेशली इन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स द 3 different the districts was participated. The representative of the 3 districts of the Jammu and Kashmir were participated. Now the second event is supposed to be the related to that is joint military exercise. The United Arab Emirates and the Indian forces were jointly exercised at the Abu Dhabi. That was the second event which was took place in the same month of the 2026 year. Now the next or the third important event is supposed to be the DRDO's the carries out the salvo launch. Salvo launch का मतलब ये होता है कि मतलब तुरंत एक के बाद दूसरा जो गोला हो रहता है या मिसाइल होती है, मिसाइल दागे जाने की जो प्रक्रिया होती है, लॉन्चर्स द एयरक्राफ्ट्स और जो मिसाइल
दागे जाते हैं उनको कहते हैं साल्वो लॉन्च। कंटिन्यूअस लॉन्चिंग ऑफ द मिसाइल्स, उनको हम साल्वो लॉन्च कहते हैं। और ये डीआरडीओ ने क्या रिलीज किया है, डीआरडीओ, एंड वो जो मिसाइल है उसका नाम है प्रलय मिसाइल। प्रलय का मतलब बहुत ही मतलब एक डेंजर है, जो एनिमीज है, एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मतलब इनिशिएटिव लिया गया है उसे कहते हैं साल्वो लॉन्च प्रलय मिसाइल। ये इंडिजिनस प्रोडक्शन है। एक्चुअली ये जो हमारे करंट अफेयर्स है, जो मेरा एनालिसिस है, तो मेरा एनालिसिस इस प्रकार का है कि मतलब अब तक जो है तो हमारा इंडियन टेरिटोरीज विच वाज मेनली बेस्ड ऑन the importing of the different missiles or the different armed equipments, पर आज जो हमारा जैसे यदि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात की जाए तो हमारा जो सेल्फ रिलायंस है, तो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हमने हमारे हथियार हमने खुद बनाने चाहिए। इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इनिशिएटिव ले लिया है। राफेल के बारे में भी जब हमारी फ्रांस फ्रांस के जो सुप्रीमोज है उनके साथ जो डायलॉग हो चुका है, उसके साथ भी हमारे जो मतलब रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री ने ये कहा गया है कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो राफेल है उसमें 50% इंडिजिनियस मटेरियल यूज किया जाए। वो उसका जो मेंटेनेंस है वो भी हमारे लैबोरेटरीज में, हमारे डीआरडीओ को लैबोरेटरीज में, स्पेशली बेंगलुरु में वो किया जाए। तो इंडिजिनस यानी आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत जो है तो उसकी और हमारा प्रयास हो रहा है। The fourth event is the New Year Hope of the Disabled Military Cadets, और a new health cover cuts a cost। जो माउंटेनिंग जो मेडिकल है, मतलब हाईली इंक्रीजिंग जो मेडिकल बिल है, और जो रिटायर्ड पर्सनल है एंड दोज आर द डिसेबल्ड राइट फ्रॉम द 1985 से लेकर के आज तक नियर अबाउट 500 सोल्जर्स और द ऑफिसर्स वेयर डिसेबल्ड, और उनके लिए जो तो स्कीम लाई गई उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्ड में बात करेंगे। नाउ लेट अस सी the first important event, that is supposed to be the army gives the trainings, or the army personnel imparts the self defense trainings to the villagers in the Jammu and Kashmir, and those that troops, we may say, as a trained personnel, right from those which was trained under the supervision of the armed forces, and those forces we can call it as a village defense guards। मतलब विलेजर्स को इंडियन आर्मी के ऑफिसरों द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है एज टू हाउ टू हैंडल द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द डिफरेंट आर्मीज, द राइफल्स एंड देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनको हमने क्या उनका जो ट्रेनिंग दिया है, तो वो जो ट्रेन्ड विलेजर्स है उनको क्या कहा जाएगा, क्या कहा गया है, उनको विलेज डिफेंस गार्ड कहा गया है। अमिड ग्रोविंग का मतलब ये होता है कि मतलब अर्लियर, नाउ डेज, जैसे मतलब आजकल जो है, दैट इज अमिड ग्रोविंग फोकस ऑन द टेररिस्ट ऑन द चेनाब वैली। आपको पता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो चेनाब वैली है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, वहां पर जो है तो मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत सारी मात्रा में हो चुकी थी। आर्मी ऑन द वेडनेसडे प्रोवाइडेड एंड स्टेप बाय स्टेप्स ट्रेनिंग्स टू लोकल सिविलियंस। ये जो मतलब टेररिस्ट की एक्टिविटीज है जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्थ रीजन में हमारे इंडिया की जो मतलब टेररिज्म है, तो उनको कहीं ना कहीं तो एक सबक सिखाने के लिए, कहीं ना कहीं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो मिलिट्री ऑफिसरों ने एक जो मतलब ट्रेनिंग दी गई है। उसमें क्या क्या है, उसमें जो ऑटोमेटिक गन्स है, जैसे कि ऑटोमेटिक राइफल्स है, वार्ड्स ऑफ द टेरर अटैक्स। वार्ड्स ऑफ टेरर अटैक का मतलब होता है कि उनकी जो गतिविधियां है, हमें डिटरेंस दिखाने की, हमें डर दिखाने की, उनको कहीं ना कहीं एक क्लोज किया जाए, उसका खतरा जो है तो हमारे मन से निकलना जाए, उसे वार्ड ऑफ द टेरर कहते हैं। द ऑफिशियल्स सेड दैट द 17 रिमोट विलेजर्स पर्च्ड ऑन द हिल्स ऑफ द भालेसा। मतलब पर्च्ड रीजन का मतलब ये होता है कि हाईली एलिवेटेड रीजन पर जो अल्टीट्यूड जो है, मतलब हिमालय की चोटी पे, हिमालय के रीजन में 7,705 फीट ऊंचाई तक जो है तो हमारे सोल्जरों ने, हमारे आर्मी पर्सनल ने जो विलेज मतलब जो विलेज
डिफेंस गार्ड से उनको जो ट्रेनिंग दी गई है तो इतनी ऊंचाई पर दी गई है, एंड दे वेर ट्रेन्ड बाय द आर्मी ऑफिसर्स, एंड वी कैन कॉल देम एज दे वेर डन देयर दैट माउंटेन कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब युद्ध होता है, माउंटेन में हिमालय के ऊपर में कैसा युद्ध किया जाए। In Doda districts, we are being provided a training to a high caliber and the self-loading rifles scores to men and the women have opted to join the VDG मतलब विलेज डिफेंस गार्ड्स in the district। इस जो ट्रेनिंग में भाग लिया गया था फॉर ए सेल्फ दैट सेल्फ डिफेंस के लिए जो विलेजर्स ने भाग लिया था डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उसमें खाली पुरुष नहीं थे, उसमें महिलाएं भी काफी मात्रा में थी। So these are the participants of the VDS, that is Village Defense Guards, we may say, and these are the geographical maps of the different region of that particularly Jammu and Kashmir. Let us see. This is the Ramban is also the district of the Jammu and Kashmir, and another one is a Kishtwar district. So, and from the Kishtwar district, the Basela locality was chosen by the armed forces to give the trainings, and another one is the Doda districts. The Doda district, the Kishtwar district, and another one is a last, that is a Ramban district. 3 districts were chosen by the armed personnel to train the villagers. Earlier, what happenings, as I already explained, the terrorists were giving the threats to the villagers, and the villagers were, taking the help of the army personnel. But nowadays, the villagers themselves are able to, the fire back, and they can also retaliate well to the terrorists. Officials of the villagers and those provided the basic trainings in the self-defense, taking a position in the bunkers. अलग अलग प्रकार का जो मतलब एक जैसे हमारे मिलिट्री के अंदर जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है कोई दूसरे कंट्री के साथ, तो इसी प्रकार हमारे विलेजर्स को जो ट्रेन्ड ऑफिसर से उन्होंने ट्रेनिंग दी गई है, और द ट्रेन्ड इट इज माउंटेन कॉम्बैट भी हुआ है उसमें, और द पोजीशंस इन द बंकर में कैसे पोजीशन ले लेना, और माउंटेन में कैसा मतलब युद्ध करना, ये सब चीजें उसमें सिखाई गई है। Latest round trainings comes in the wake of the growings and a tip off about the terrorist movements in the Chenab Valley. Chenab Valley में पहले बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब जो आतंकवाद जो है, जो टेररिस्ट जो है तो वो हो रहा था, एंड कंप्राइजिंग द डोडा और द रामबंस एंड द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, 3 जिलों के अंदर बहुत सारी गतिविधियां ये टेररिस्ट की हो रही थी, और इसके लिए वहां पर ट्रेनिंग दिया गया है। तो ऑफिसर्स का क्या कहना है? द ऑफिशियल सेड दैट द विलेजर्स in the pockets of the Doda close to the Chenab districts of the Himachal Pradesh were also undergoing armed trainings. armed training जो है तो हिमाचल प्रदेश में भी दी गई है। Significant steps were taken this year, and what happens is, according to the SSP or the सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द पुलिस ऑफ संदीप मेहता, उनका ये कहना है कि ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आर्मी द्वारा दी गई है विलेजर्स को, तो उनका ऐसा मतलब आउटपुट ये है कि 6-7 महीने से, या मतलब ये 4-5 महीने में जो तो कोई टेररिस्ट गतिविधियां ये रीजन में नहीं हो चुकी है। टेरर ऑपरेशंस, meanwhile an anti-terror operations in this Doda adjoining districts, Udhampur, where one constable was killed in the December 15th. Security forces have launched a manhunt eliminate the Pakistani terrorist. मतलब एक जो हमारे सोल्जर थे, जो कांस्टेबल थे, उधमपुर में उनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद जो तो मैन हंट एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया। मैन हंट का मतलब ये होता है जो छुपा हुआ टेररिस्ट है उनको ढूंढ के निकालना, उसे कहते हैं दैट इज ए मैन हंट, मतलब हंटिंग करना है उसकी, जिसे हम हंटिंग बोलते हैं। तो मैन हंट जो है तो उसे किया गया है। सो फॉर व्हाट पर्पस द मैन हंटिंग वाज डूइंग, सो इट वाज टू एलिमिनेट द पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड इट वाज इन हाइडेड इन दैट पर्टिकुलर एरियाज, मतलब छुपा हुआ जो एक टेररिस्ट था उनको बाहर निकालने के लिए ये मतलब गतिविधियां चलाई गई। The second editions of the Indian UAE military exercise
concludes in the Abu Dhabi. अबू धाबी के शहर में ये जनवरी के मंथ में जो दूसरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल गतिविधियां हो चुकी है उसे कहते हैं सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया यूएई, दैट इज यूनाइटेड अमीरात्स जो है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज हो चुकी है और उसे कहते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये सेकंड एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है मतलब 2026 में 2026 में यदि ये हमारे इंडिया और यूएई के बीच जो सेकंड साइक्लोन सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो क्या उसमें क्या ये दो देशों के अंदर पहले भी ऐसी कोई एक्सरसाइज हो चुकी है? तो यस, 2014 में इन 2024 द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्टिविटीज और द ट्रेनिंग एक्टिविटीज और द ड्रिलिंग वाज टुक प्लेस इन द 2014। तो उस समय भी हमारे दो देशों के अंदर एक कवायदी बोलते हैं हम उसे, तो हो चुकी थी। सो दिस इज ए फोर्सेस कैरिंग, ये जो लोकेशन मैप है दैट इज यूनाइटेड अमीरात का, दिस इज द मैप ऑफ द center where the training was took place or the joint exercise was taken place in the contingent of the UAE and the forces which were participated from an Indian force, and those forces were participated from especially the Maharashtra's area, that is in Ahmednagar. Nowadays we are going to calling it is Ahilyanagar, and that was a most important battalion and which was in the 43 in number. That the troops were participated with the UAE exercise right from the Maharashtra. This is the second edition of the joint military exercise. ये जो joint military exercise हो चुके हमारे और यूएई के बीच, तो ये कहां पर हो चुकी थी? इट वाज, और उसका जो नाम क्या था, ये दो देशों के अंदर जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो चुकी है to combat the growing threat of this enemy states. We know the Pak and the Chinese threat is very prominent to the Indian territory, and उनके लिए जो है तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। Now the second editions of the joint military exercise were took place in the UAE, Abu Dhabi, and their name was, and its name was the Desert Cyclone. Desert cyclone was the name. So it means that in the desert also and even in the cyclonic condition also, the armed forces has to be, show their good performance. They has to endure their strength for the nation. तो इसलिए उसका नाम दिया है डेजर्ट साइक्लोन। साइक्लोन जैसी स्थितियों में भी हमारे सैन्य जो है तो वो हमारी जो मतलब एक्सट्रीम जो पोटेंशियल है वो पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। Between the Indian Army and the UAE, that is land forces, concluded with the closing ceremony at the Al Hamara training city in the Abu Dhabi. अबू धाबी में कहां पर ये एक्सरसाइज हो चुकी है? जहां पर अबू धाबी में यूएई का जो एयरफोर्स का जो सेंटर है तो वो है अल हमारा। अल हमारा सिटी में उनका जो एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर हो चुकी है ये एक्सरसाइज राइट फ्रॉम अप टू द 13th December, and making the successful completions of the nearly the 2 weeks of the intensive bilateral training. तो ये bilateral training में बहुत सारी एक्टिविटीज हो चुकी है। तो उसमें क्या क्या हो चुका है? यदि बंकर के अंदर कोई छुपा हुआ है, सिटी के अंदर कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है, गांवों के बीच कोई टेररिस्ट अगर छुपा हुआ है तो उसको कैसे भगाए, उसके ऊपर कैसे मतलब एक्शन ले ले, मिलिट्री एक्शंस। तो इस सब चीजों का जो है तो उसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में एक्टिविटीज हो चुकी है। और ये 2 वीक चला हुआ जो प्रोग्राम है राइट फ्रॉम द 18th to 19th इन द अबू धाबी सिटी। अबू धाबी दैट इज इन अल हमारा ट्रेनिंग सेंटर पे जो हुआ था इन बिटवीन द इंडिया एंड द यूएई, उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज एंड रिफॉर्म्ड डिपेंड, इट इज ए डीपनिंग डिफेंस पार्टनरशिप, it was also a reformed and the deepening डिफेंस पार्टनरशिप। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्ड में जो है तो हमारे एक्टिविटीज गतिविधियां वहां पर हो चुकी है। द इंडियन ट्रूप्स वेर ट्रेन्ड
at the greater levels between the two nations and highlighted their shared commitments to the regional peace, security and the stability. ये joint exercise जो हो चुकी है उसका आउटपुट क्या है? तो उसका आउटपुट ये है कि हमारे रीजन में पीस होना चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और मतलब स्टेबिलिटी भी दो रीजन के अंदर कैसी स्टैब्लिश हो सकती है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय एक्सचेंजिंग द आइडियाज ऑफ द मिलिट्री एंड द आर्म्ड फोर्सेस. तो ये हुआ एक्सरसाइज फीचर्ड एक्सरसाइज जो हो चुके हैं यूएई और इंडिया के अंदर, तो वो दो मतलब अलग अलग टाइप की हो चुकी है. एक है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, क्लासरूम में भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए एज टू हाउ टू टैकल विद द सर्टेन टैक्टिक्स ऑफ द एनिमीज. तो एक है दैट इज it was featured by the classroom instruction number 1, and another one is a field based trainings and aimed in enhancing the interportability, that is an interoperationality and the mutual trust. मतलब उसमें जो है तो म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए और फील्ड ट्रेनिंग एज वेल एज द क्लासरूम, ये सब चीजों का वहां पर जो है तो डिटेल्ड में एक्सरसाइज हो चुकी है. And why this training was to place the mutual trust between the operational synergy in the urban environment with the emphasis on the sub-conventional operations under the United Nations mandate. United Nations के जो मैंडेट है उनके अकॉर्डिंग ये जॉइंट एक्सरसाइज हो चुकी है. The troops carried out the progressive practice. Troops का मतलब होता है कोई भी सैन्य दल हो सकता है या कोई मतलब ऑफिसर हो सकता है या कोई सोल्जर हो सकता है, उसे हम कहते हैं ट्रूप्स. तो द बोथ आर्मीज एक्सचेंज द रिहर्स्ड द ड्रिल्स ऑन द रूम इंटरवेंशंस एंड द क्लियरेंस इनेबलिंग द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड द प्रोसीजर्स. ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो चुकी है उसमें किस प्रकार के टैक्टिक्स की यूज किया जा सकता है, टेक्निक्स किस प्रकार की होनी चाहिए और क्या प्रोसीजर होना, क्या स्टैंडर्ड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसीजर होना चाहिए, ये सब चीजों का जो है तो हमें एक दूसरे को आइडिया एक्सचेंज की गई है इन बिटवीन द इंडियन एंड द यूएई's आर्मीज. द इंडियन कंटिजेंट्स कंप्राइजेस 45 पर्सनल्स. इंडियन के 45 पर्सनल्स थे and UAE के 53, means the 98 personals were participated in this program. So this is supposed to be the mechanized infantry regiment. हमारे इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन किया था वो फौज कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो यूएई के साथ जो जनवरी में हमारा ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो चुकी है उसमें मैकेनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंट है. वो अहमदनगर नाउ डेज उसे एक मतलब अलग नाम दिया गया है, दैट इज अहिल्यानगर कहते हैं. तो वहां से जो है तो ये मतलब ट्रूप्स बिलोंग करते हैं, दैट इज 45 ट्रूप्स. और उनका जो ओरिजिन है दैट इज मतलब ये जो मैकेनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंट है तो उसकी मतलब क्या आवश्यकता थी बनाने की. वैसे तो हमारे साथ हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेजिमेंट थे, पर जब 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा जब वार हो चुका था तब उस जमाने में जो है तो इंडियन फोर्स में के जो ऑफिसर्स है उन्होंने ये सब चीजों का मतलब गठन करके मैकेनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंट अहमदनगर में बनाया है. एंड जो मैकेनाइज्ड इन्फंट्री है तो उसका जो लगभग दैट इज 2000 एकड़ का जो मतलब एरिया है उसमें ये सब चीजें है. नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ द इंडियन मैकेनाइज्ड और द मैकेनाइज्ड इन्फंट्री जो है तो मतलब इट इज कनेक्टेड टू द टैंक्स, मतलब टैंक्स का ट्रेनिंग वहां पर दिया जाता है. The third important event which was took place in the January, that is DRDO carries out the Salvo launch parallel missile. मैंने पहले आपको कहा कि ये जो हम इंपोर्ट कर रहे थे पहले बाकी देशों से जो मिसाइलें है या कोई मतलब व्हाट एवर दी जो चीजें डिफेंस में या मतलब जो युद्ध के दौरान जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, तो ये अगर हमने स्टॉप कर दिया तो वी कैन बिकम ये आत्मनिर्भर. तो ये आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा जो तो ये मतलब प्रयास है. तो इसलिए डीआरडीओ ने क्या किया है कि डीआरडीओ ने एक इंडिजिनस प्रलय मिसाइल एक उसका टेस्ट ले लिया है on Wednesday. The test was successful and it was took around the 10:30 AM.
मतलब सुबह जो है तो 10:30 बजे ये प्रलय मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है फ्रॉम द डीआरडीओ। और वो कहाँ पर किया गया है? वो ओडिशा के कोस्टल रीजन में किया गया है। एंड द फ्लाइट टेस्ट्स वेर इन कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स। यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का मतलब जो ट्रायल किया गया है उसका मतलब एक रिकॉर्ड भी बनाया गया है कि वेदर द प्रलय इज गोइंग टू रीचिंग ए प्रॉपर टारगेट और नॉट। उसका टेलीमेंट्री द्वारा मतलब जो समुद्र के अंदर जो एक मरीन सिस्टम होता है उसके अंदर जो है तो एक सिस्टम होता है टेलीमेट्री का, उसके द्वारा ये तय किया गया है। इट वाज कंफर्म्ड दैट द प्रलय इज गोइंग टू रीचिंग एंड टारगेटिंग इट्स अ फिक्स टारगेट। ये देखिए, मैंने पहले आपको कहा है कि जो प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसमें आत्मनिर्भरता की बात है, उसमें मतलब स्वदेशी बनावटी चीजें हमने बनानी चाहिए, तो उसमें से एक प्रलय है। और पहले जो हमारी रेंज थी वो रेंज मतलब कम वाली थी, जो मतलब दूरी का जो टारगेट है तो ये उसमें हमें कुछ सटीकता नहीं आ रही थी। पर ये जो प्रलय है, प्रलय का जो निर्माण हो चुका है हमारे डीआरडीओ द्वारा। आपको ये पता होना चाहिए कि डीआरडीओ इज ए मोस्ट द इम्पोर्टेंट एंड प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इन द डिफेंस सिस्टम। इंडिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें उनके बड़े जो ऑफिसेस है और हेडक्वार्टर्स है वो 7 डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स है। और ये जो चीज हो चुकी है जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में एयरफोर्स से कनेक्टेड ये जो मिसाइल है उनका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और जैसे बाकी जो आर्टिलरीज की बात अगर की जाए तो डीआरडीओ वो पूना का जो हमारा ऑफिस है डीआरडीओ का वहां से होता है। और दिल्ली में भी 2 डीआरडीओ के ऑफिस है। एक ऑफिस जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड है एंड अनदर ऑफिस इज आल्सो कनेक्टेड टू द बायो वेपन्स, मतलब बायोलॉजी के ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर जो वर्क किया जाता है, रिसर्च किया जाता है डीआरडीओ द्वारा, वो दिल्ली में उसके 2 ऑफिसेस है। एंड अदर 2 ऑफिसेस are also working in a good conditions. And according to the Ministry of the Defense, both the missiles were intended the trajectory and met all the mission objectives to confirmed by the tracking sensors deployed by the integrated test range। ये टेस्ट रेंज जो उसका कितना, either it is up to 500 किलोमीटर और नॉट, ये भी तय हो चुका है by means of the proper system, that is a telemetry system होता है। ये टर्मिनल इवेंट्स वेर validated through the telemetry systems on the ships positioned near the designed impact points। जहां पर हम निशाना लगा रहे हैं, जहां पर हमारी मिसाइल जा रही है, वहां का टेलीमेंट्री द्वारा कंफर्मेशन किया गया है। The next scheme is also important, that is a 4th event which was took place in the January, मतलब न्यू ईयर ऑफ द होप ऑफ द डिसेबल्ड मिलिट्री कैडेट्स। ए न्यू हेल्थ कवर, उनके लिए एक न्यू हेल्थ कवर की पॉलिसी ला चुकी है। उसमें जो शुभम गुप्ता है और जो भतिंदा से बिलोंग करते हैं और पंजाब से जो कार्तिक शर्मा है, उनके लिए जो है तो 10,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा स्लिप है तो वो लॉन्च होने के बाद मिल चुकी है उसको उनको। और in the last month the Shubham Gupta got a temporary slip that is confirming his an entry into the ex servicemen's contributory health service schemes। ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम है that is the ECHS, मतलब it is connected to the ex servicemen contributory health scheme। और ये स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है कि जैसे ये जो मिलिट्री में ट्रेनिंग के दौरान या मतलब जो युद्धजन्य परिस्थिति में ऑफिसर्स जो है वो मतलब इंजर्ड हो जाते हैं और बाद में पेंशनर पे जाते हैं, दे बिकम्स द पेंशनर्स एंड देयर सैलरी में आल्सो बी समवट लेस, सो दैट द माउंटेनिंग द बिल्स में बिकम्स द प्रॉब्लम्स टू देम। सो दैट इज द फैसिलिटीज एंड दैट इज इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद होके इनिशिएटिव लिया है कि वो जो स्लिप कार्तिक को दे दिए एंड RS 10,000 द लेस इन मंथली मेडिकल बिल्स। एंड विक्रांत राज एंड किशन Kulkarni was also benefited and he has got the slips। and these youngsters were among around the 5,500 ऑफिसर्स कैंडिडेट्स। ये जो स्कीम है ये इंडियन आर्मी का जो मतलब एकेडमी है,
इंडियन आर्मी एकेडमी की जो मतलब भाई उनके ऑफिसरों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फेब्रुआरी मंथ। फेब्रुआरी मंथ में क्या क्या चीजें हो चुकी है? इंडिया एंड फ्रांस रिन्यू द डिफेंस कोऑपरेशंस फॉर 10 इयर्स कॉल बूस्ट्स मिलिट्री पार्टनरशिप्स। इंडिया और फ्रांस के बीच जो समझौता हो चुका है, जो डील हो चुका है, उसमें 10 इयर्स अगेन हाउ द इंडिजिनस जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर डेवलप की जाए, उसमें उसके लिए नॉलेज और द टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाए, उसके बारे में डीएससी डिक्लेयर्स रिकॉर्ड्स। मतलब डिपार्टमेंट जो है, तो वो डिपार्टमेंट मतलब डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है कि 3.60 लाख करोड़ ऑफ द रुपीज उसका प्रोक्यूरमेंट किया गया है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? कोई हथियार जो है या कोई इक्विपमेंट से सैन्य अपने लड़ाई के दौरान या युद्ध के लिए जो हथियार खरीदते हैं उनको कहते हैं प्रोक्यूरमेंट्स। यह है प्रोक्यूरमेंट का मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3.60 लाख करोड़ रुपीस की कुछ मतलब एक परचेसिंग की है। उसमें क्या क्या है? उसमें है 114 राफेल जेट फाइटर्स प्लस और क्या है उसमें? और उसमें ऐसे देखिए ऐसे 6 मतलब सर्विलियंस प्लेन है जो कि हमारे नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड द पाकिस्तान इज गोइंग टू increasing. Therefore the what we can say that is a P8I। P8I मतलब ये 6 P8I जो है तो उनकी खरीदी है। और अनमैन्ड व्हीकल है। अनमैन्ड अनमैन्ड का मतलब होता है जो व्हीकल है या ड्रोन है वो सर्विलियंस के लिए, जैसे स्ट्राटोस्फियर, जैसे मतलब जमीन से लेकर के 25 किलोमीटर से जो सर्विलियंस किया जाता है ड्रोन द्वारा, मतलब हमारे जो एनिमीज है या कुछ हमारे अगेंस्ट गतिविधियां हो रही है उसके लिए ये P8I जो है, P8I एज वेल एज अनमैन्ड व्हीकल्स, ये दोनों का भी इस्तेमाल हमारे सर्विलियंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जैसे जासूसी कह सकते हैं हम उसे, तो इसके लिए जो है तो प्लस 114 ये जो राफेल मतलब लड़ाकू विमान है या लड़ाकू जेट है, तो उसके लिए हमने ये 3.60 लाख करोड़ रुपीस का जो है तो अप्रूवल मिल गया है टू द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस फॉर टू प्रोक्योरमेंट और फॉर टू परचेसिंग ऑल दोज इक्विपमेंट्स। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज जो है तो इंडिया ग्रीस डिफेंस टाइज फोकसेस ऑन दी दैट इज मेरीटाइम मीट्स, उसके बारे में है। एंड दैट इज रिलीज that is a defense ties focuses on the ministers meet in the न्यू दिल्ली में जो ग्रीस के जो ऑफिशियल है उनके हमारे राजनाथ सिंह साहब के साथ उनकी डायलॉग हो चुका है। द इंडिया रिलीज द फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी दैट इज प्रहार। प्रहार नाम की पॉलिसी हमने रिलीज की है। ये क्या है प्रहार? मतलब जो अपार्ट फ्रॉम द टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट का तो थ्रेट हमारे देश के लिए है, पर उसके अलावा जो हमारे देश की जो नेटवर्किंग है, जैसे ट्रेन है, बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सिग्नल, बाकी जो मतलब जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सब अप्लायंसेस है उनसे कनेक्टेड जो मतलब थ्रेट है इंटरनेट से कनेक्टेड, तो उनको कहीं ना कहीं तो एक मतलब ब्रेक लगाने के लिए हमारे मतलब जो सुप्रीमोस है देश के, जो हमारे मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड जो कुछ भी ऑफिसर्स है, उन्होंने ये एंटी टेरर पॉलिसी, उसे प्रहार कहा गया है, तो ये लॉन्च की गई है। तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करें। इंडिया हैज आस्क्ड द फ्रांस टू इंक्रीज द इंडिजिनस कंटेंट्स ऑफ द राफेल बाय अप टू द फर्स्ट न्यूज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे दैट इज अप टू 50% जो राफेल है, तो राफेल एक लड़ाकू मतलब प्लेन है, एक लड़ाकू एयर जेट है, तो उसमें क्या होना चाहिए हमारा मतलब इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ये है कि 50% उसमें इंडिजिनस मटेरियल हो, उसका मेंटेनेंस हमारे यहाँ पर हो, एक्सपांड द राफेल्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स एंड ओवरऑल फैसिलिटीज ऑफ द इंडिया। उसका जो मेंटेनेंस है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुछ भी मतलब मेटल्स है
तो उसमें 50% जो तो इंडिजिनस हो। तो ये हमारा मीटिंग के दौरान डिस्कशन हो चुका है बेंगलुरु में, ऐसा द हिंदू ने कहा है। एक्चुअली फरवरी 20 मतलब फरवरी 18 की ये न्यूज़ है। ये जो डील हो चुका है, जो डिस्कशन हो चुका है, तो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है एज वेल एज द फ्रांस के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज रिन्यूड द डिफेंस कोऑपरेशंस एंड इट इज सपोज टू द एग्रीमेंट फॉर द अनदर 10 इयर्स। जो ट्यूसडे में जो बातचीत हो चुकी थी 17 में ये मीटिंग हो चुकी है और 18 को ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी थी। दैट इज द 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग्स इन बेंगलुरु में जो डायलॉग हो चुकी थी। हमारे मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है वो, एंड वेटरन अफेयर्स भी रह चुके हैं वो, और द वेटरन अफेयर्स ऑफ द फ्रांस दैट इज कैथरीन वाउतरिन, ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रांस है वो वहां के रक्षा मंत्री है। उनके बीच जो ये मतलब 10 ईयर एक्सटेंशन ऑफ द 10 ईयर एग्रीमेंट का जो बात हो चुकी है। इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ द राफेल्स and the maintenance of the Rafale has to be done in Indian continent only. That India asked the France to increase the indigenous content in the Rafale by up to the 50%. राफेल के अंदर 50% इंडियन बनावटी का मटेरियल आप मतलब इस्तेमाल कीजिए, एंड आल्सो एक्सपांड्स द राफेल्स मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज इन इंडिया के अंदर ही अंदर हम उसका जो है तो मेंटेनेंस कर पाए, ताकि हर बार जो है तो हम फ्रांस को अप्रोच करना, फ्रांस के लैबोरेटरीज को अप्रोच करना, वहाँ के साइंटिस्ट को अप्रोच करना, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारा ये जो है तो मतलब प्रयास रह चुका है। दैट इज द कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स वाज साइंड बाय द इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी इन फ्रांस, द डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रेटेजी। ये जो मतलब डायरेक्टर जनरल है उनके लेवल पर ये बातचीत हो चुकी है। एंड बिसाइड्स बोथ द कंट्रीज अनाउंस्ड that is a reciprocal deployment of the officers Indian Army and the French Land Forces establishment। उसमें भी जो है तो आर्मी के जो ऑफिसर है, ये जो टेक्नोलॉजिस्ट है, उनका भी एक्सचेंज किया जाना चाहिए। The two ministers discussed the range of the bilateral security and the defense issues, including in priority areas for the co-development and the co-productions of the equipment। co-development भी होना चाहिए ये राफेल का, और को-प्रोडक्शन भी होना चाहिए, मतलब इंडिजिनस मटेरियल का इस्तेमाल राफेल में होकर के एक हमारे यहाँ पर 50% राफेल का जो पार्ट्स है वो बनना चाहिए, उसके बारे में जो है डिस्कस हो चुका था। द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड दैट द टू लीडर्स एम्फसाइज्ड ऑन द नीड फॉर द क्लोजर डिफेंस पार्टनरशिप। हमारे जो दो पार्टियां हैं उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि कनेक्टिंग इंडस्ट्रीज ऑफ बोथ द नेशन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द that is the niche technology, and it said that the ministers reformed that the commitment enhances the military to military cooperations as to key pillars of the strategic partnership। ये दो देशों के अंदर जो मिलिट्री टू मिलिटरी जो कनेक्टिविटी है तो ये हो जाएगा, ऐसा भी मतलब फ्रांस के जो मतलब सुप्रीम उनके द्वारा कहा गया है। बोथ द मिनिस्टर्स agreed the leverage of this frameworks both the bilaterally in a wide European context of the tangible outcomes that will be strengthen the regional stability, enhance the joint capabilities and reinforce of the enduring Indo-French strategic elements in the ministry said। ये जो मिनिस्ट्री ने हमारे ये कहा गया है कि ये जो चर्चा हो चुकी है उसके द्वारा जो फ्रांस और इंडिया के अंदर जो बायलैटरल डायलॉग है और उनके अंदर जो मतलब रिलेशंस है वो ज्यादा भी और एक स्ट्रेंथन हो चुके हैं। दैट इज डैक क्लियर्स रिकॉर्ड्स ऑफ 360 लाख करोड़। ये मतलब पहली न्यूज है जिसके बारे में सेकंड न्यूज इज एसोसिएटेड विद द फरवरी मंथ। तो उसमें क्या हो चुका है कि अप्रूवल मिल गया है। दैट इज लार्जेस्ट कैपिटल्स एक्विजिशंस क्लियरेंस इन द रिसेंट ईयर्स। ये साल में मतलब सबसे ज्यादा अगर खर्चीली या सबसे ज्यादा प्रोक्यूरमेंट की बात की जाए, जैसे कि 3.60 लाख करोड़ रुपीज, इट इज नॉट ए नॉर्मल फिगर, ये बहुत बड़ी फिगर है। तो उसका जो है तो मतलब प्रपोजल को सैंक्शन मिल चुका है
and the council chaired by the defense ministers also records that is an acceptance of the necessary. ये जो acceptance of necessary का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो देश है, ये उनका जो मतलब ग्लोबल लेवल पर अगर हमने उसका जो रैंक देखी जाए तो वी आर ऑन द 4th पोजीशन. हमारी जो आर्मी है उसका जो रैंक है इट इज ऑन द 4th पोजीशन. That is according to the certain survey, that is the according to the power survey, it is one of the survey where the 60 points has to be considered to evaluate the which country's military is superior. So that is a power rank, we may say the India is on the 4th position. एंड ये अगर हमारा स्टेटस है 4th प्रकार की 4th रैंक वाली हमारी अगर आर्मी है, हमारी सेना है, तो वही मतलब स्टेटस को मतलब एक्वायर करने के लिए या हमारा स्टेटस और बढ़ाने के लिए जो है तो हमें हथियार खरीदने पड़ते हैं, हमें इक्विपमेंट खरीदनी पड़ते हैं, ताकि जो हमारे मतलब एनिमी नेशंस है उनको हमारे बारे में डिटरेंस रहे, वो हमें डर के रहे, तो इसलिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है. जैसे जो हमने एयरशिप्स बेस्ड दैट इज स्यूडो सैटेलाइट भी खरीदी है, जैसे मैंने आप लोग को पहले कहा कि जो स्ट्राटोस्फीयर से वो सर्विलियंस करता है, देखरेख करता है हमारी इंडिया की, दैट इज अनमैन्ड व्हीकल हम उसे कह सकते हैं, दैट इज IAF. एंड द 6 P-8I रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट ऑफ द नेवी, नेवी के लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो 6 दैट इज 6 P-8I जो है तो हमें मतलब खरीद करना है, इसके लिए हमें से 3.60 लाख करोड़ रुपीस का सैंक्शन मिल चुका है. दिस इज सपोज टू बी ए सीडो सैटेलाइट, दैट इज HAPS. इट इज एन अनमैन्ड अल्ट्रा लाइट वेट एयरक्राफ्ट. ये जो एयरक्राफ्ट है ये लाइट वेट है, देखिए आप बहुत छोटा है, दिखने में लंबा है, पर ये क्या करता है, इट इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन सो एज टू व्हाट इज हैपनिंग अगेंस्ट अस, स्पेशली विद द रेफरेंस ऑफ द मेरीटाइम. ये मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्ट्रा लाइट वेट है एयरक्राफ्ट, सच एज सोलर पैनल लगा चुके हैं उसको, सोलर पैनल्स, एंड एयरशिप्स है, एंड दैट ऑपरेट्स इन दैट इज स्ट्राटोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर जो है मतलब ओजोनोस्फीयर के ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम स्ट्राटोस्फीयर कहते हैं. दैट इज सिचुएटेड, ये जो स्ट्राटोस्फीयर है ये कहाँ पर है स्थित, ये इट इज ऑन 18 to 25 किलोमीटर, इट इज फार अवे फ्रॉम द सरफेस. नाउ दिस इज सपोज टू बी द फोटो ऑफ द राफेल जेट. ये राफेल जेट है, ये दुनिया का मतलब ये आज के जनरेशन का एक बेस्ट लड़ाकू जो जेट कहा जाता है ये राफेल है. तो बहुत ही मतलब उसे और एक नाम दिया गया है, दैट इज ए ऑमनियंट. राफेल को ऑमनियंट प्लेन कहा गया है, ऑमनियंट जेट कहा गया है. ऑमनियंट का मतलब ये होता है कि एक ही झटके में एक ही बार अगर मतलब जो एक्सपेडिशन होगा उसका, उसमें सब मतलब ध्वस्त होगा. शत्रु राष्ट्र के लिए जो भी हमें करना है, जैसे कि उसका जो पेलोड कैपेसिटी है राफेल जेट का, द पेलोड कैपेसिटी इट इज सपोज टू बी ए 9,500 किलो, 9,500 किलोमीटर, लगभग एक 10 टन के आसपास ये जो पेलोड होता है उसके जो 14 हार्ड पॉइंट्स होते हैं. ये 14 हार्ड पॉइंट्स मतलब जहां पर हम जो है तो बारूद या जो कुछ भी लड़ाक जो मिसाइल्स है वो हम उसे लोड कर सकते हैं. तो ऐसे 14 पॉइंट्स है हार्ड पॉइंट्स, उसमें ये 9,500 किलोग्राम 9,500 किलो जो वेट होता है वो कैरी करता है. और उसका खुद का जो वेट है इट इज ऑल्सो 10 टन्स, और 10,000 के लगभग उसका खुद का एक ये है. और जो नॉर्मल ह्यूमन का जो साइट होता है, ये ह्यूमन का जो मतलब देखने की जो कैपेसिटी है, नॉर्मल आई साइट हम उसे कहते हैं, तो उसकी जो रेंज है उससे भी ज्यादा मतलब स्पीड से गोले दागे जाते हैं. एंड इट कैन बी इट्स रेंज में भी अप टू 1,900 किलोमीटर. मतलब इंडिया से जम्मू कश्मीर से 1,900 किलोमीटर तक कोई मिसाइल जो है तो दागने की क्षमता ये मतलब ये राफेल कर सकता है, इसलिए उसे ऑमनीजेट कहा गया है. सर्विलेंस भी कर सकता है. दिस इज ए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एंड ऑन 3rd February 12th 2026 according the acceptance of the necessity, that is AON
for the capital acquisition of the proposals worth approximately 3.60 लाख करोड़ रुपीस उसको सैंक्शन मिल चुका है। और उसके साथ साथ और भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये जो जेट है या मतलब ये जो राफेल है उसको दैट इज ऑमनी रोल का मतलब क्या होता है? इट इज ए एविएशन टर्म्स मेनली यूज्ड फॉर टू डिफाइन एज एन असल्ट डिसॉल्ट एविएशन ऑफ द राफेल फाइटर जेट के बारे में ये कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया है कि उसकी जो सुप्रीमेसी है, उसकी जो क्वालिटीज है, दैट इज एयर टू एयर कॉम्बैट, मतलब हवा के अंदर ऊपर ही वार करने की उसकी जो क्षमता है, कॉम्बैट कहते हैं, युद्ध को कॉम्बैट कहते हैं। एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड स्ट्राइक, एयर से ग्राउंड तक स्ट्राइक लेना, रिकनेसेंस मतलब एक सर्वे करना, एनिमीज का क्या हलचाल है, क्या एक्टिविटीज है। एंड न्यूक्लियर डिटरेंस, डिटरेंस का मतलब होता है एक डरावना सा, एक मतलब डिटरेंस दिखाना, भीति या क्या कहते हैं हम उसे, डर दिखाना, डर दिखाने का जो प्रयास होता है ये भी उसमें शामिल है। इसलिए उस कहते हैं दैट इज ऑमनी रोल कहा गया है। इट इज ए सुप्रीम व्हीकल ऑफ द वॉर, ऐसा उसे कहा जाता है। दैट एग्जैक्ट फ्लाइट विदाउट नीडिंग टू ए रिकन्फ्यूगर्ड एंड रीआर्म्ड। एक बार अगर 9,000 किलोग्राम का जो वेट होता है वो अपलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, देयर इज नो नीड टू कम बैक। एंड उसका जो फ्यूल कैपेसिटी होता है वो भी 4,000 किलोग्राम से 4,000 किलो तक का उसका जो कैपेसिटी है ये भी है। तो इसलिए इट इज ए बेस्ट व्हीकल फॉर ए वॉर। इंडियन नेवी इज द फर्स्ट बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट डिलीवर्ड। जो मतलब हमारी जो चर्चा ये है मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, और ये जो बोइंग है मतलब बोइंग P-8I, ये हमने यूएसए से खरीदा है और ये आ चुका है। जैसे जनवरी में उसके बारे में डिस्कशन हुआ था, मतलब एक जनवरी में डिस्कस हुआ, पर 10 मई के आसपास एक चेन्नई स्थित तमिलनाडु के अंदर एक एरोली नाम का जो एरोस्पेस है, ये मतलब वहां पर है। तो ये बोइंग एक आ चुका है और बाकी रिमेनिंग जो 5 है दे आल्सो comes in a very short time. That is the first 8 Boeing P-8I long range maritime reconnaissance का मतलब होता है प्रिलिमिनरी सर्वे करना, इंस्पेक्शन करना और एक्सप्लोरेशन करना, टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन एंड द टारगेट। ये सब चीजों का जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी है दैट इज P-8I एयरक्राफ्ट की है, जिसकी मतलब 8 हमें ये एयरक्राफ्ट लेना है। सो दैट इज द एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन नेवी कैरिड आउट द नेवल एयर स्टेशन। राजौली नाम का जो एयर स्टेशन है हमारा, दैट इज ये एयर स्टेशन, नेवल एयर स्टेशन जो है राजौली, तो ये राजौली में अराकोनम तमिलनाडु की स्थित है यहाँ पर। तो वो 15 मई को आ गया है। दैट इज वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने ये कंफर्म किया है। Bimal Verma is supposed to be the chief staff of the Eastern Naval Command, the president over the inductions of the ceremony that was attended by the commanders and the Puneet Bahal। उन्होंने ये कहा गया है कि that Rajoli, that is INS Rajoli, that is representatives of the commandant and the integrated headquarters of the Ministry of the Defence Navy। ये 15 मई को ये मतलब आ चुका है। This is the picture of the P-8I aircraft। It is equipped with the advanced radar sensor है उसके अंदर, expected to enhance the Navy surveillance। नेवी के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए उसकी एक कैपेसिटी है। इट इज सपोज टू बी तमिलनाडु में जो INS ये राजाली है, ये तमिलनाडु के राजाली में, जैसे हमने कहा कि ये फरवरी के अंदर जो डिस्कशन हुआ था उसको मतलब कुछ परचेसिंग करने का, प्रोक्यूर करने का जो मिनिस्ट्री ने उसको असेंट दे दिया था, और ये मई के अंदर मतलब 2 महीने के अंदर ये चीजें हमारे पास आ चुकी है। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर इंडक्टेड इन प्रोग्रेसिव 4 बिलियन डील फॉर द 6 एडिशनल बोइंग P-8I। ये जो एडिशनल बोइंग है ये हमने कहाँ से लिए है? यूनाइटेड स्टेट से लिए है। तो उसका जो खर्चा है दैट इज 4 बिलियन है, $4 बिलियन है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट? That is the function is to significantly boost the India surveillance capabilities of the Indian Oceans। हमारा जो चाइना से जो हमें डर है, तो ये इंडियन ओशियन के लिए जो सर्विलेंस करने वाला P-8I है, that is the next event which was took place, India Greece
डिफेंस टाइज फोकसेस ऑन द मिनिस्टर्स मीट इन द न्यू दिल्ली, और इंडिया ग्रीस उनका जो कोऑपरेशन है उसका भी जो एक्सरसाइज होने वाला था, दैट इज February 8 2026 के बारे में जो मीटिंग हुई थी, उसमें सिंह सिकॉज का जो ये मीटिंग है, हमारे मतलब कोलैटरल ऑफिसर। Then internal security policy, the fourth point of the February month is the internal security policy है। उसमें इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मैंने पहले ही बात की है। उसमें लैंड, वाटर और एयर से जो हमें थ्रेट है, अपार्ट फ्रॉम द टेरर एक्टिविटीज, जो सोशल मीडिया है या जैसे कोई मतलब पावर, रेलवेज, एविएशन, स्पोर्ट्स एंड डिफेंस स्पेसेस जो है हमारे, उनके लिए अगर कोई थ्रेट दे रहा है तो उसके लिए हमने एक पॉलिसी लॉन्च की है, एंड दैट इज सपोज टू बी द इंटरनल सिक्योरिटी एंड द पॉलिसी का ये इशू है जो फरवरी में हो चुका है। दैट इज पहले मतलब दिसंबर 2025 में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की भी मतलब स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। Now coming to the last month of the today's presentations, issues those are associated with the March 2026। उसमें जो पहली एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहली बात की आपके साथ कि बच्चों जो एनडीए के प्रिपेयर एनडीए के लिए जो प्रयास करना चाह रहे हैं, दोज आर द एस्पायरेंट्स एंड द डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ऑफ द डिफेंस एकेडमी। तो इनके लिए मेरा ये सुझाव है कि ये जो कुछ इवेंट्स हो चुके हैं उनका जो ट्रेंड है, इट इज टुवर्ड्स द इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स। उसमें जैसे देखिए डीआरडीओ ने प्रलय लाया है हमारे देश के लिए, और ये जो HAL है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट मतलब एक हेलीकॉप्टर बनाया है, दैट इज एम के थर्ड सीरीज का जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में हम बातचीत करना चाह रहे हैं आपके साथ। दैट इज द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस डील वर्थ। पहले हमने जो इंडिजिनस की बात पहले भी की थी हमने, और उस मतलब फरवरी में जो हमें असेंट मिला था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री को कि यू कैन परचेस यू कैन प्रोक्यूर और यू मे परचेस दी डिफरेंट जेट्स और दी दैट इज लड़ाकू जो मतलब एयर जेट्स है राफेल जैसे, या P8I है, या अनमैन्ड व्हीकल्स सर्विलेंस के लिए जो मैंने आपको बताया पहले कि जो मतलब जो स्ट्राटोस्फीयर से जो सर्विलेंस कर रहा है, तो उसके लिए 3.60 लाख करोड़ रुपीस का सैंक्शन मिला था। और भी हमने कुछ 5083 करोड़ रुपीस हमने मतलब स्पेंड किए हैं फॉर व्हाट, टू टू डेवलप द LAH, दैट इज LAH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव जो है एक हेलीकॉप्टर है जो इंडिजिनस है, इंडियन बनावटी का है टोटली। LAH जो है दैट इज ए एडवांस्ड है, और इसने मतलब एम के थर्ड सीरीज का है, दैट इज चॉपर्स है। इट चॉपर्स ये हेलीकॉप्टर जो है ये एडवांस्ड लाइट वेट हेलीकॉप्टर हमारे नेवल का जो कमांडेंट है, या जो कोस्टल गार्ड, जो कोस्ट गार्ड्स हम कह सकते हैं उसके, उनके पास अगर ये हेलीकॉप्टर अगर है, तो मान लीजिए कि ये हेलीकॉप्टर आने के बाद जो हमारा जो कैपेसिटी बढ़ेगा, इट इज 65,000 मैन हावर्स। जैसे 65,000 घंटे का काम जो है तो ये अकेला करेगा, जो सर्विलेंस का काम है वो करेगा, दैट हेलीकॉप्टर ध्रुव, एंड इट इज एन एम के थर्ड चॉपर्स। दैट इज द एक चीज है ये ALH है, दैट इज एन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। उसके ऊपर कुछ हमने 50% दैट इज 2,900 crores rupees something is supposed to be spent on the Dhruva, and remaining 2,000 and something is supposed to be spent on the श्रिल मिसाइल्स टू। श्रिल का मतलब होता है एक साइलेंट, श्रिल है साइलेंट है, पर जो सबमरीन होती है या हमारे कुछ मतलब मेरीटाइम में जो हथियार यूज किए जाते हैं या मेरीटाइम में जो वेसल्स यूज किए जाते हैं, उसके ऊपर ये श्रिल मिसाइल होती है। इट कैन टारगेट दी राइट फ्रॉम दी मतलब लैंड, और वी में से द लैंड और दी वाटर टू एयर। जो टारगेट होता है उसका ये श्रिल मिसाइल का होता है, टू बिस्ट द मेरीटाइम सिक्योरिटी। ये जो है तो हमने
ये भी जो है तो उसके ऊपर भी हमने that is 50% of that 5,000 plus crore rupees has been spent. The Coast Guards get the 6 indigenously designed, the developed and the manufactured MK3 choppers. Choppers का मतलब टूथ, एक और मतलब सपोर्ट मिल जाना कोई चीज का सर्विलियंस के बारे में. That is MK3 choppers worth 2,901 crore from the HAL. That is the Hindustan Aeronautical Limited जो है वो डेवलप कर रही है. और दूसरा जो श्रील है जो नावी दल द्वारा मतलब यूज किए वाली मिसाइल है. दैट श्रील इज सपोज टू बी डिजाइन्ड बाय द रशियन स्टील मिसाइल वर्थ. रशिया ने पहले भी S-400 बनाए हैं, तो रशिया के तरह हम भी हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट डेवलप कर सकते हैं क्या, उसकी तरफ अब हमारा एक मतलब प्रयास जारी है. कुशा नाम का एक मतलब पूजा पाठ में यूज किए गए वाला जो हिंदू सिरोमनियल जो एक्टिविटीज होती है उसमें एक ग्रास का नाम है. दैट इज दैट कुशा. और दैट इज ऑपरे प्रोजेक्ट कुशा नाम का एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया गया है इंडियन मिलिट्री द्वारा, इंडियन DRDO द्वारा, कि जैसे S-400 है, जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम है, जैसे एयर एंटी मिसाइल सिस्टम है. कोई शत्रु, कोई एनिमीज अगर हमारी तरफ कोई मिसाइल दाग रहा है तो उसको कैसे रोका जाए. इस प्रकार की जो रशियन स्टील मिसाइल है उसका जो कॉस्ट उसका 2,182 करोड़ रुपीस है. 2,182 करोड़ रुपीस उसका जो अमाउंट है. ये मतलब इतना सारा खर्चा करके हमने जो तो ये एम्पावर किया है हमारे जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल गार्ड है. आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो लैंड एरिया है इंडिया का जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन है वो नियर अबाउट 15,000 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है हमारे लगभग नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के साथ, जो हमारे पड़ोस है उनके साथ. और जो सदर्न पेनिनसुलर रीजन है इट इज आल्सो गोइंग टू शेयरिंग 7,000 प्लस किलोमीटर बाउंड्रीज. ओके, तो ये जो 7,000 किलोमीटर बाउंड्रीज है हमारे पेनिनसुलर रीजन की, श्रीलंका की तरफ जो है या गुजरात से लेकर के उधर बंगाल तक का जो हमारा जो प्रोट्रूडिंग रीजन है ऐसे दैट इज पेनिनसुला, तो उसके लिए ये सर्विलियंस होने के लिए करेगा. इट इज फ्रॉम ए रशिया. इट इज डिजाइन्ड बाय एन इंटरप्रेट द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, एंटी शिप क्रूसाइज मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स एंड द ड्रोन्स. ये जो ड्रोन्स होते या हेलीकॉप्टर्स होते उनसे जो हमें थ्रेट होता है तो उनको या उनके द्वारा मतलब छोड़ी गई जो मिसाइल है उनके लिए ये स्टील जो मिसाइल है हमने मतलब अर्लियर हमने उसको भी प्रोक्योर किया गया है बाय DRDO. तो नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हो चुका है. दैट इज द सेकेंड न्यूज ऑफ द मार्च में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है दैट इज नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव. नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में ये भी हो चुका है. जैसे हमारा बॉम्बे है, बॉम्बे के अंदर जो शिप बिल्डिंग का प्रोग्राम चलता है तो उनके लिए इंडिजिनस शिप कैसे बनाया जाए उसके अंदर जो मतलब 9 मार्च और 9 और 20 ये 2 दिन में है जो मार्च के, ये सब नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज का कॉन्क्लेव हो चुका है. एक्चुअली उसका जो प्रोग्राम हो चुका है वो दिल्ली में हुआ है. दैट इज मानेक शाह सेंटर. मानेक शाह एक बहुत बड़े मिलिट्री के मतलब हेड थे हमारे, एज ए चीफ थे. और उनके लिए जो दिल्ली में मानेक शाह सेंटर बनाया गया है. जैसे बांग्लादेश का जो ओरिजिन है तो उनके ही मतलब प्रयास से हो चुका है. पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में जो है तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. न्यू दिल्ली एंड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस एंड प्रोडक्शन, दैट इज DDP एंड मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस. ये जो इंपॉर्टेंट नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री का जो कॉन्क्लेव हो चुका है, कॉन्क्लेव हम जैसे सेमिनार या कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते वैसे एक कॉन्क्लेव होता है, तो ये दिल्ली में हो चुका था. दैट इज मानेक शाह सेंटर में हुआ था. इट इज होस्टेड बाय द मानेक शाह सेंटर्स इन द न्यू दिल्ली एंड द कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑन हेवीली एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजी कैसी हो, एडवांस हो
or it is united, and in academia, MSME, that is a Ministry of the Micro, Small and the Medium Enterprises of the Industries. अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने उसके अंदर भाग लिया था, जो कि डिफेंस के लिए काम करती हो, या डिफेंस पब्लिक सेक्टर, दैट इज यूपीएसयू, डीपीएसयू जो है, दैट इज द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो हथियार बनाए जाते हैं, जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और ये जब सब प्रक्रिया हो रही है अंडर द बैनर ऑफ द दैट इज द नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव, तो उन्होंने कुछ पब्लिकेशंस भी किए हैं, उन्होंने कुछ मतलब मैंडेट भी, कुछ ब्लूप्रिंट्स भी बनाए हैं, किस प्रकार का गाइडलाइंस होना चाहिए एज टू वर्क फॉर द एमएसएमईज एंड टू वर्क फॉर द डीपीएसयूज, किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसमें भी आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा प्रयास है। अलग अलग जो इंडस्ट्री है, एंड दोज आर सपोज्ड टू बी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जैसे कि रूस है या अमेरिका है या चाइना है, वहां पर उनके हथियार खुद बनाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो मतलब वो दूसरों फॉरेन से प्रोक्योर करना, फॉरेन से इंपोर्ट करना, उससे बेहतर ये है कि व्हाई नॉट वी कैन क्रिएट द इंडिजिनस वेपन्स। एंड ये जो मतलब कॉन्क्लेव हो चुका है डिफेंस से कनेक्टेड मानेकशॉ में, तो उसमें कुछ पॉलिसियां लॉन्च की गई, दैट इज पॉलिसी रिलीजेस, दैट इज ड्यूरिंग द, दैट इज एनडीआईसी, दैट इज the Raksha Mantri launched the several key publications to help the domestics and the different companies, that is Samarthya 2026, Sankalan, and the AI, that is Artificial Intelligence Maturity Assessment Model। ये आर्टिफिशियल मैच्योरिटी जो है, ये आर्टिफिशियल मैच्योरिटी असेसमेंट मॉडल को जो है तो मतलब एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको एक मतलब ग्रीन फ्लैग दिया गया है। दैट इज दी सामर्थ्य 2026 के जो ये ऑफिसर्स है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। स्वान जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, दैट इज सपोज टू बी giving the service to the armed forces। as in India as a ship building sector के अंदर ये जो काम हो रहा है, उसका इंडिजिनस डेवलपमेंट है ना हो रहा है, उसे सामर्थ्य कहा गया है। एंड सामर्थ्य का मतलब होता है कि शिप बिल्डिंग सेक्टर एंड द ट्रांसिशंस फ्रॉम इन इंटेंट्स टू द एक्सक्यूशंस, दैट इज सामर्थ्य 2026 एंड INA, that is DGS conclaves emerged as in timely and in purposeful platforms to reinforcing the indigenous equipments। This is supposed to be the Directorate Generals of the ship, and उसका जो हेडक्वार्टर है ये बॉम्बे में है। and it was maidens editions of the conclaves was joined and inaugurated by the Vivek Merchant। Vivek Merchant जो है, he is a director of the Swan Defense and the Heavy Industries Limited। उन्होंने भी, और विवेक मर्चेंट इंडस्ट्रीज ने भी ये जो मतलब कॉन्क्लेव हो चुका था दिल्ली में मानेकशॉ में, वहां पर भाग लिया था। और उसमें भी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इनिशिएटिव लिया गया था। दैट संकलन भी है। संकलन का मतलब ये होता है कि रेफर्स टू एन ऑफिशियल कॉम्पेडियम्स ऑफ द पॉलिसी सर्च इंजिन्स फॉर लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। तो किस प्रकार का इक्विपमेंट बनाना चाहिए उसके बारे में जो है तो दैट इज कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस हैज बीन पब्लिश्ड। ये जो कॉन्क्लेव हुआ था उसमें दो प्रकार के पब्लिकेशन हो चुके हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट कॉन्क्लेव और द आउटकम ऑफ द डिफेंस कॉन्क्लेव was the artificial intelligence maturity assessment model। तो artificial intelligence का भी यूज किया जा सकता है इंडस्ट्रीज, those industries especially those are giving the service to the defense एंड ये डिफेंस में भी उसका जो है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है तो वो हो सकता है। दैट प्रोग्रेसिव स्टेप हैज टू बी इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एंड इन इफेक्टिवली इनटू द कोर ऑपरेशंस कैपेबिलिटीज बिल्डिंग्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो चुका है फॉर द इंटीग्रेशन फॉर टू
the research and development. The Ministry of Defense of the official launched that is an artificial intelligence maturity assessment model alongside the other critical publications at the National Defense Industries Conclave held in the New Delhi. तो ये इम्पोर्टेंट एक कॉन्क्लेव हो चुका है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली द डिफेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी गई है कि हाउ टू डेवलप द इंडिजिनस things in the armed forces. So it was all about right from this January to March current events. Thank you so much.